All right, after the bulk modulus, we can see the next term is called compressibility, which is the reciprocal of bulk modulus. So let's see the next one. यह फार्मूला याद कर लो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू बल्क मॉडुलस का. डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी. डेल्टा पी क्या है? चेंज इन द प्रेशर. डेल्टा वी द चेंज इन वॉल्यूम, वी द इनिशियल वॉल्यूम. यहाँ पे लिख दूं मैं डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, वी द इनिशियल वॉल्यूम. है ना? क्लियर? What is the unit of bulk modulus? Same as that of the stress. क्योंकि इसकी तो यूनिट होती नहीं है, जो स्ट्रेस की होगी वही बल्क मॉडुलस की होगी. पास्कल यू कैन राइट और यू कैन राइट, देखो यहाँ पर लिखा है पास्कल, और यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Same as that of the pressure. All the three modulus and stress will have same unit as that of the pressure. All right. तो इसका next one is the compressibility. It is very simple. It is a reciprocal of bulk modulus of material. किसी मटेरियल की compressibility डिफाइन करनी है तो bulk modulus का reciprocal. इसको सिंपल रखते हैं. Just we not write anything extra. Let us keep it simple. K is equal to 1 by B. है ना? Unit will be also reciprocal. Dimension will also be reciprocal. है ना? तो कॉमन सेंस से बोल देखो, गैसेस विल हैव हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी. देखो गैसेस का बल्क मॉडुलस कम है. देखो यू कैन सी एयर इज हैविंग बल्क मॉडुलस वेरी लो वैल्यू, देयरफॉर कॉम्प्रेसिबिलिटी विल बी हाई. Bulk modulus is less, compressibility will be more. In other words, they can be compressed easily. है ना? जिनका bulk modulus कम होगा उनकी compressibility will be more. They can be compressed easily. So gases have got high value of compressibility. Gases have high compressibility and low bulk modulus, low value of bulk modulus. And because they can be compressed easily, the things which can be compressed easily will have the less value of bulk modulus. Rigid object होंगे उनका bulk modulus will be high, compressibility will be low. I'm asking you one question. Ideal rigid object, मतलब आइडियल रिजिड ऑब्जेक्ट मीन्स जिसको हम जिनकी डायमेंशन को चेंज न कर पाए, वी कैनॉट चेंज द डायमेंशंस. उनका स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन विल बी 0. डायमेंशन चेंज हो ही नहीं रही, स्ट्रेन इज रिलेटेड टू. यंग्स मॉडुलस विल बी स्ट्रेस अपॉन 0, इन्फिनिटिव. So ideal rigid object will have infinite Young's modulus, infinite bulk modulus. Dimension change ही नहीं हो रही है ना? तो Young's modulus will be infinity, bulk modulus will be infinity. है कि नहीं? It is a theoretical question, theoretical possibility. कोई भी मटेरियल थोड़ा सा तो चेंज होगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 चेंज हुआ. इवन स्टील वायर लीजिए आप, स्टील की रॉड लीजिए, you apply some force, outward force or inward force, microscopically it will change. There will be the change in dimension. You may not notice it, but there will be certain change in the dimensions. It is not there कि bonds जो है, दो molecules, two atoms will come closer or move away depending upon the tensile force or compressive force. उनकी dimension तो change होंगी. हम ऐसा नहीं बोल सकते 0 change in dimension. You may not notice it, but there will be certainly some change in dimension will be there. So there will be some finite value of Young's modulus.
बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट नहीं हो सकती। थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं आइडियल, बट प्रैक्टिकली नथिंग इज आइडियल एज फार एज चेंज इन डायमेंशन इज कंसर्न। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ में आ गया आप लोगों को? It is related to compression. Things, object which can be compressed easily will have high value of compressibility and low value of bulk modulus. Bulk modulus लिखना है तो 1/k लिखेंगे, k ज्यादा है तो bulk modulus कम है। ठीक है, all right, both the terms are clear? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, नहीं एक और पॉइंट बता दूं पहले मैं आपको। सपोज ये लिक्विड है, ये कंटेनर लिया आपने, इसमें अपने वाटर या अदर कोई लिक्विड भर दिया, तो ड्यू टू दैट लिक्विड व्हाट इज द प्रेशर एट बॉटम, है ना? अगर अपने एच डेप्थ एच हाइट तक लिक्विड भर दिया तो बॉटम में कितना प्रेशर होगा? तो लेट्स सी, प्रेशर एट डेप्थ एच इन द वाटर ड्यू टू द वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम है ना, कितना वाटर कॉलम में, इट इज गिवन बाय, प्रेशर इज गिवन बाय रो जी एच। P is the pressure due to water at depth h. Rho is the density of water, which is 1000. H is the depth, and H तो depth लिखी रही इसमें। तो pressure due to liquid, यहाँ पे atmosphere pressure नहीं है, तो atmosphere pressure we are not talking about. There will be the atmospheric pressure also. ये derivation हम next chapter में करने वाले हैं। Pressure due to liquid column is rho g. यहाँ पे यहाँ पर atmosphere भी ऐड करेगा, P atmosphere, वो नहीं, वो भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमें इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, बिकॉज द नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज 3000 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन। फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन किसको बोलेंगे? डेल्टा वी बाई वी को बोलेंगे, है ना? चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम of the water at the bottom of the ocean, given that bulk modulus of water is this much, take G10. तो प्रेशर निकलना पड़ेगा हमें, चेंज, दैट विल बी द चेंज ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है ही, वो नहीं चाहिए, बाकी चेंज कितना हो रहा है? डेल्टा पी, इट विल बी रो जी एच। आर गेटिंग? ये लिख लो पहले आप, फिर न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व है वैसे तो, फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू बिकॉज दिस थिंग इज न्यू फॉर यू, which is in the next chapter. Done. या ठीक है, तो इसका देखते क्या पूछा है ये, हमें डेल्टा वी बाई वी निकालना है ना। तो पहले चेंज ऑफ प्रेशर निकाल लिया, एच रो जी, ये रो जी एच और एच रो जी जो भी लिखना है ये टर्म। इससे उन्होंने डेप्थ कितनी दी है? 3000, डेंसिटी 1000। ओशन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, प्योर वाटर की 1000 होती है, बट दे आर टेकन 1000 ओनली। एच इज द, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चेंज ऑफ प्रेशर इतना आ गया, तो नाउ वी कैन यूज द फार्मूला, bulk modulus is the stress upon strain, तो strain is delta v। तो यहाँ पे देखो strain को इधर शिफ्ट कर दिया, which is delta v by v, इधर stress है अपॉन bulk modulus, तो stress की वैल्यू ऊपर से निकाली ये वाली, bulk modulus of water is given this। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओनली थिंग न्यू थिंग इज फॉर यू चेंज ऑफ प्रेशर which is h rho g, which
which I have initially told you. Next class में we'll derive the relation. How do we get this? Ratio is equal to force upon area, उससे आ जाता है. ठीक है? So this question is solved example. But we'll do the exercise question, which is next one. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज का. Based on the bulk modulus, calculate the bulk modulus of water from the following data. Initial volume is given, pressure, change of pressure is given. Delta P कितना है? 100 atmosphere. 1 atmosphere is this much. ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. It will be 1.013 into 10 to the power 7 पास्कल. तो ये चेंज ऑफ प्रेशर हो गया. देखो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है. डेल्टा वी विल बी, वी इज कितना? 100 लीटर्स. और ये कितना है? चेंज 100.5 माइनस 100, दैट इज 0.5 लीटर्स. ठीक है, तो डेल्टा वी इज गिवन, वी इज गिवन, प्रेशर इज गिवन, चेंज ऑफ प्रेशर. तो दैट्स ऑल. व्हाट एल्स वी नीड? नथिंग. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो 1.013. ओके, वी को ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 7. वॉल्यूम कितना है? 100. चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है? 0.5. तो डू वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द एसआई यूनिट की लीटर चलेगा? लीटर इज नॉट एसआई यूनिट. डू यू नो दिस? लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट. 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्यूबिक सेंटीमीटर ना, तो 1000 को बाहर सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल क्यूब. 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब आएगा. बट सिंस यहाँ भी लीटर रहेगा, नीचे भी लीटर रहेगा, इट विल गेट कैंसल. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द कन्वर्जन. तो ओनली आपका ये इसका यूनिट बचेगा. कितना आ रहा देखो, ये आपको सॉल्व करेंगे तो 10 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं इसको. 10.13 डिवाइड बाई पॉइंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं. देखो ये आपका एक डेसिमल है, ये आपका इधर आ गया, और ये आपका 10.13 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 9. तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 2.02 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल लिख सकते हैं इसको. पास्कल लिख सकते हैं, इजी यूनिट लिखते हैं. गॉट इट? क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, समझ में आ गया? ये इजी क्वेश्चन है, बट दिस कैन बी आस्क्ड. यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला करेक्टली, है ना, एंड वैल्यूज करेक्टली आइडेंटिफाई करनी है. क्वेश्चन नंबर 12 था ये. बेस्ड ऑन योर bulk modulus. All right? Yes. नोट कर लीजिए. No problem so far? No, sir. All right, नोट कर लीजिए. फिर I think I'll tell you one more question, and other question also you can try.
10 to the power 9. Okay, let's see what is next. ये क्वेश्चन कुछ है इसी टॉपिक के, ये वाला एक और करते हैं ये. यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा सा 13 वाला थोड़ा सा मे बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. 14 यू कैन ट्राई, 15 16 में यहाँ करा दूँ आपको. तो देखिए, हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन a liter of water be changed to compress it by 0.10%, and bulk modulus is given. bulk modulus आपको टेबल से लेना पड़ेगा. to compress it by this, उसका वॉल्यूम है, bulk modulus से डिट कर रहे हैं. तो change in the volume should be 0.1% of initial volume. इसका मतलब यही हुआ ना, गेटिंग और नॉट. तो डेल्टा वी बाई वी, तो ये कितना हो जाएगा 0.1%. तो 0.10 अपॉन 100% मीन्स डिवाइड बाई 100, तो वी हो गया. तो ये आप यहाँ से आपको डेल्टा वी बाई वी दिया हुआ है. कितना लिख सकते हैं इसको? 0.1 को 10 to the power -1, तो ये आपका आ जाएगा, ये 0 इधर 1 मिनट है, तो ये आपका आएगा 10 to the power -3 आ रहा क्या, है ना? और Yes. B इज गिवन, B हमने नोट कर लिया उधर से. तो B इज इक्वल टू चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V. तो चेंज ऑफ प्रेशर इज क्रॉस मल्टीप्लाई B इंटू डेल्टा V बाई V. तो बल्क मॉडुलस कितना दिया है आपको? 2.2 इंटू 10 to the power 9. डेल्टा V बाई V ये 10 to the power -3. तो चेंज ऑफ प्रेशर इज कमिंग 2.9 इंटू 10, सॉरी 2.2 इंटू कितना रहा, 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉट दैट ओनली थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वन. ये क्या दिया है? चेंज ऑफ वॉल्यूम 0.1%, 0.10%. All right. So this was the question number 16. So these all were related to your what is called bulk modulus. What will be the compressibility of water? Water की compressibility कैसे निकालेंगे वो लोग? Compressibility of water will be how much? 1 upon B. 1 upon B. B की वैल्यू, ये B की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना? Yes. अगर आपको वाटर का बल्क मॉडुलस दे दिया है, कॉम्प्रेसिबिलिटी पूछा है, तो रेसिप्रोकल कर देना है ना? 4 point something इंटू 10 to the power -10 कुछ आ जाएगी. ठीक है, तो you have to remember the correct formulas. Done, no problem. Shall we move on to the next point? Question number 21 is also based on that bulk modulus only. स्टील का bulk modulus हमने टेबल से ले लिया, तो this can be the one question. Shear modulus and application, नहीं ये भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट भी है.
What is the next? Third one is the shear modulus. Third one is what? Shear modulus or modulus of rigidity also we call it. क्या बोलते हैं? Shear modulus. Is there any issue? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Let me bring back the screen. Yeah. What is the third one? What is the third one? Shear modulus, or another name is modulus of rigidity. कितना rigid है वो, और shear modulus. So symbol is eta. What we read it, eta, इसको eta बोलते हैं, elongated and जैसा. और G, NCERT बुक में G दिया है, but G stands for giga 10 to the power 9. तो इसलिए हम G symbol नहीं लेंगे. This is the commonly used symbol eta. तो ये लेंगे हम. It is a ratio of shear modulus to the, I mean it is a ratio of shear stress to the shear strain. Shear stress तो वही रहेगी F upon A. Shear strain कितना होगा? Delta X upon L. Delta X was the relative displacement between the top and bottom layer of the था. Delta X. Do you remember the diagram? ऐसा वो सिलेंडर ऐसे शिफ्ट हो गया था. सिलेंडर अपने इनिशियल पोजीशन से ऐसे शिफ्ट हो गया था. इतना होता नहीं है वैसे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा होता है, बट दिस वाज द डेल्टा एक्स, जिसको हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वी कॉल इट. ऑलराइट, तो यूनिट तो वही रहेगी. इसकी क्या रहेगा? डायमेंशन पास्कल रहे, यूनिट पास्कल रहेगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. all the modulus will have unit Newton per meter square, which is also equal to Pascal. So there are two questions. One is solid example. You can do it yourself, but exercise question we can do and then wind up. Okay. जब शेप चेंज होता है तो this comes into action. Shear modulus we consider, or we call it modulus of rigidity also. So this was the second type of the stress and strain. So you can remember this way or this way, or you remember this one and put the values of this shear strain and shear stress. So one is question number 9.4 of the exercise, solid example, sorry. तो उन्होंने दिया हुआ है सब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका, और हाउ मच फोर्सेस अप्लाइड इज गिवन, एंड इसका शेयर स्ट्रेन भी दिया हुआ है लेड का, आई मीन शेयर मॉडुलस भी दिया हुआ है, ठीक है, और शेयर स्ट्रेन पूछा है, नहीं ये पूछा कितना शिफ्ट हो जाएगा ये. एंड सिमिलर क्वेश्चन इज दिस वन, ये सॉल्व एग्जांपल है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए. ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम. देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 हो जाएगी. ये उसका एक फेस दिख रहा है हमें फ्रंट पे, वन साइड इज विजिबल, ऐसा कुछ क्यूब होगा. यहाँ पर फोर्स कुछ लग रहा है. वन ऑफ द face of the cube is firmly fixed to the vertical wall here, and mass of the 100 kg, यहाँ पर 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus is given. ये देखो ये क्या है? ओके साइड तो मैंने यहाँ लिख दी, मास, हाँ एक मिनट, मास इज 100 kg, and what about this? So ये क्या शेयर मॉडुलस है? 25 into 10 raised to 9. या गीगा पास्कल है ना, इट विल बी गीगा स्टैंड्स फॉर 10 to the power 9 बस. एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये निकालना आपको, डेल्टा एक्स. व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द
ऑफ दिस फेस, वर्टिकल डिफ्लेक्शन में कितना ये नीचे आ गया, ये फेस का हाउ मच इट इज गॉन डाउन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डेल्टा एक्स निकलना है आपको। तो फार्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स बाई एल। एल क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी एल, दैट इज 0.1 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को इधर ले आइए और इधर एफ अपॉन ए, एल ऊपर चला जाएगा, ईटा नीचे रह जाएगा। तो डेल्टा एक्स, एफ फोर्स कितना होता है mg, एफ को mg लिख सकते हैं, एल दिया है, ए भी हमें पुट करना पड़ेगा। मास इज 100, जी 10 ले लीजिए, और ये लेंथ ऑफ द क्यूब इज, साइड ऑफ द क्यूब इज 0.1, और नीचे एरिया कितना हो जाएगा, क्यूबिकल है 0.1 इंटू 0.1, एंड ये 25 इंटू 10 टू द पावर 9। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, ऊपर कितना है, ये आपका 25 कैंसिल हो गया, 4 हो गया, है ना। 0.1 भी एक कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 4 इंटू ये 0.8, 0.7 आ रहा है क्या, कि कुछ गड़बड़ हो रही, 0. नहीं 8 -7 आ रहा है क्या, लेट अस सी द आंसर। -6 आ रहा है, एक डेसिमल का गड़बड़ हो रहा है क्या, -6, ये 4 हो गया, 25 है ना, हाँ ठीक है, और ये 100 है, और नीचे ऊपर 0.1 है ना, नीचे एरिया, एक कैंसिल हो गया, 8 हो गया, 7 आ रहा है ना, समथिंग इज, Yes, sir. 10 raised to -7 ही आ रहा है। बुक में इन्होंने -6 दिया आंसर, कैन यू सी, -7 आ रहा है। समटाइम्स कुछ एरर होती है बुक में, लेट अस क्रॉस चेक वंस मोर। mgl, यहाँ पर फोर्स में इन्होंने क्या दिया है, मास दिया है, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, फोर्स के लिए mg होता है, तो 100 इंटू 10 हो गया, एंड ये डिस्टेंस जो है अपोजिट फेस के बीच का 0.1 है, 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर ही है ना, लेट अस सी इट बिगर, हाँ 10 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय एरिया 0.1 इंटू 0.1, ईटा 25 इंटू 9, तो ये 4 हो गया, एक 0.1 कैंसिल हो गया, और ये 0.1 है तो 0.8 रहेगा, ऊपर गया 10 टू द पावर -7, इतना आ रहा है, देयर में बी सम एरर इन द बुक, ठीक है। एंड यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल ये वाला 9.4, understand and do it, don't see the solution, you try to understand the question and do it yourself, only match the answer, that's all। उसमें solution देखने बैठते तो टाइम वेस्ट होता है, do it your own way, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी सी द प्रीवियस आंसर जो हमने सॉल्व किया था, -6 कैसे आ रहा है इधर, ओके नहीं डायरेक्ट लिख दिया होगा मैंने, नाउ आई हैव कैलकुलेटेड, तो इट इज कमिंग -7 ओनली। .4 होगा तो -6 हो जाएगा, इफ यू राइट 0.4। That's all from my side. Any difficulty? Tomorrow we'll see extra point and applications of this, and this chapter will be over, and we'll start the new chapter tomorrow itself. Okay, sir. Okay, sir. Which chapter are we starting next? Fluid. This was the solid. Next chapter is the fluid. Okay, sir. Okay. Just a minute. Let me see your attendance. Who has joined late? Acha. Nyanda, you were not there. You are joined now.